Jagudev students, welcome you all in the business studies class. Students, in the business studies class, you have studied the different forms of business organization. That there are different forms of business organization are there, and it depends upon the people who wants to become an entrepreneur that which business forms is suitable for him and which is in which he is having most profit. He is getting most profit in that particular business and less risk will be there. So I had explained you all the different forms of business organization. That is, you have studied sole proprietorship, you have studied partnership form, you have studied about the joint Hindu family business, or you have studied about the cooperative society and the joint stock company. So I have explained you the different forms of business organization, the features of business, different forms of organization, and their merits and demerits. So it depends upon the person who wants to become the entrepreneur in the future, or who become the self-owned person, self-employed person. So it is depends on him that which business forms of business organization he is selecting. So whether it is he suitable for sole proprietorship, he is suitable for partnership business, he is suitable for starting the joint stock company or in the cooperative society, or he may be doing the joint Hindu family business. So each and every business forms of organization has their own merits and demerits. So considering the different points in mind, you just select which business organization is suitable for him. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा कि आपने जो अलग अलग इतने बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए. क्या आप सोल प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, यू नो दैट इट इज़ अ सिंगल ओनरशिप इज़ देयर. दैट मीन्स अगर आप कोई अपना खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इट इज़ जनरली स्मॉल स्केल बिजनेस, तो आपके लिए अपना थोड़ा सा पैसा लगा करके आप अपना बिजनेस खुद का या उसमें रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बन सकते हैं. And if you are having more capital, तो you can become the you start the partnership firm also. अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो you can become the partner also. एंड अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, सपोज आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो कि जिसमें आपकी मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, तो आप उसी बिजनेस को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. एंड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सपोज इफ़ यू वांट टू हेल्प अदर्स, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को सही चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर भी बन सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट्स टू बी इन अ लार्ज स्केल बिजनेस, तो यू कैन बी द मेंबर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन कौन से बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्या उनकी मेरिट्स हैं, क्या आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं. बिकॉज यू नो दैट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. अगर किसी का एडवांटेज है तो डेफिनेटली सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो देयर. सो एवरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. So you should keep in mind the different form merits and demerits also. In the previous lecture, I have explained you about the if you want to start an enterprise, what are the points keeping in mind. आपको हमने ये भी बताया था कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी, कौन कौन से पॉइंट्स आपको सोचने हैं, आपको क्या बिजनेस करना है, लार्ज स्केल करना, स्मॉल स्केल करना है, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, क्या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कंट्रोलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन की थी. नाउ टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू the evaluation of comparative evaluation of forms of organization. मीन्स जितने भी अपने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, अब हम सबको कंपेयर करेंगे. देन यू कैन डिसाइड कि विच इज़ द बेस्ट फॉर बिजनेस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू. सो आई हैव गिविंग यू द बेसिस ऑफ कंपेरिजन. आई हैव टेकन सम पॉइंट्स लाइक फॉर्मेशन, मेंबर्स, capital contribution, liability, control and management, and continuity. These are the points in which taking these points I am discussing the different forms of organization. This is sole proprietorship, this is partnership, this is joint in the family business and cooperative society, and this is the company form of organization. So first of all I am taking the formation. Formation, you know that कि किसी भी business को start करने के पहले उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, मतलब उसमें कितना टाइम लगता है, इट इज़ एक्सपेंसिव और इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, उसकी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है. तो फॉर्मेशन में देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप इज ईजी फॉर्मेशन इज देयर, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर, नो रजिस्ट्रेशन विल बी देयर, और उसमें सबसे ईजिली ये फॉर्म हो जाता है. इसको शुरू करने में आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, ईजी फॉर्मेशन है. इन पार्टनरशिप बिजनेस ईजी फॉर्मेशन है इसमें भी, बट रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है. अगर आप चाहें तो पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज देर इज़ नो compulsory is not there, there is no compulsion in
making doing the registration of the partnership firm. So partnership firm also easy, but it is as we are comparing the sole proprietorship, there is some formalities are there in the partnership firm, but then also it is easy formation is there and registration is optional. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इट इज ऑल्सो ईजी फॉर्मेशन क्योंकि ये एंसेस्ट्रल बिजनेस है और इसमें आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती, आपको सेटअप किया हुआ बिजनेस मिल जाता है एंड नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. देयर इज अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड first of all you have to register the cooperative society and then you can start the working of cooperative society. Now company, in the company form of organization, as students you know that there are companies are divided into two parts, private company and the public company. So every company has registration is compulsory. When we want to start the company, so registration is compulsory for starting the company form of organization and even many formalities are there. Before starting the formation company, before we have to form the company, we have to do so many legal formalities, registration also we have to do and other formalities also. So this is a complicated process. So these are the first point I have taken, this formation. So formation can be done accordingly in this different form of organization. The second is member. मेंबर्स कितने होने चाहिए हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कंपेयर किया है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड. So in sole proprietorship, no, only one member can start the business because it is a sole proprietorship. Sole means single ownership रहती है, इसमें एक ही व्यक्ति अपना बिजनेस चलाता है और रिस्क भी वही लेता है. सेकेंड इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए. जब भी आप कोई पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम 2 पार्टनर्स होना जरूरी, 2% का होना जरूरी है. और मैक्सिमम लिमिट जो है पार्टनरशिप फर्म की है वो है 20. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड बी 20 एंड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 2. Next is joint Hindu family business. Joint Hindu family business में at least 2 persons is necessary because it is also a combined business and no maximum limit. इसकी कोई maximum limit नहीं है. फैमिली में जितनी भी it is a ancestral property और जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि उसमें बिजनेस में प्रॉपर्टी में उनका शेयर है तो वो सारे के सारे जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर के मेंबर्स बन सकते हैं. नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपको मिनिमम 10 मेंबर्स कंपलसरी है. मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बी फॉर्म द मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स एंड देर इज नो मैक्सिमम लिमिट. इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए और नो मैक्सिमम लिमिट इज देयर. नाउ कंपनी. कंपनी में देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. इन प्राइवेट कंपनी द मिनिमम 2 मेंबर्स आर नेसेसरी. कभी भी आपको कोई प्राइवेट कंपनी शुरू करनी है तो उसमें 2 मेंबर का होना ज़रूरी है. मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट जो है वो है इसकी 50. मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 50. एंड इन पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7. In just like in private company there is 2, but in public company the minimum number of member is 7 and the maximum limit is 50 only. That is maximum should be 50 and minimum is 7. Now capital contribution. कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है कितना कैपिटल जो है जनरली जो मेंबर्स होते हैं वही अरेंज करते हैं. तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो लिमिटेड है. Limited, because there is only single person is there and that single person is collecting his own capital, his own funds. So जितना भी वो पैसा खुद से अरेंज करता है उतनी ही कैपिटल इसमें होती है. इन पार्टनरशिप मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप. पार्टनरशिप फॉर्म में डेफिनेटली सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा कैपिटल हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिकॉज इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ सिंगल पर्सन बट इन द पार्टनरशिप फॉर्म मोर देन 1 person is there. So there are in sole proprietorship business there may be more capital is there as compared to sole proprietorship in partnership. Now partnership में जो है वो sole proprietorship से ज़्यादा capital हम collect कर सकते हैं. Now joint hindu family business में ancestral property होती है. तो जितनी भी property हमें ancestral property पूर्वजों से मिली है या हमारी जो family से है वही उसकी capital होती है. And in cooperative societies limited. यहाँ पर जो है वो cooperative societies में limited कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि जितने मेंबर्स होंगे वो उतना ही अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं ला सकते क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. तो देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो लिमिटेड. इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर देयर. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एज मेनी मेंबर्स एज कैन ज्वाइन द कंपनी. सो हाउएवर द मेंबर्स आर देयर दे विल कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी यू नो दैट इट इज डिवाइडेड टू शेयर्स. तो ये जो है इसमें जो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं तो कंपनी कैन बी अ लार्ज स्केल कंपनी ऑल्सो. नेक्स्ट इज
लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइबिलिटी है वो मेंबर की जो है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि इज द ओनली पर्सन। तो जितना भी जिम्मेदारी है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ही हैज टू बेयर ऑल द रिस्क ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी इसको पूरा शेयर मिलेगा, और लॉस होगा तो वो भी इसको पूरा का पूरा शेयर करना पड़ेगा। सो देयर इज अ लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। इन पार्टनरशिप बिजनेस अनलिमिटेड एंड ज्वाइंट, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसमें भी होती है, लेकिन ज्वाइंट होती है। ज्वाइंट मीन्स अगर जितने भी पार्टनर है वो सब मिल करके कंपनी के जो भी लॉस है उसके लिए लायबल होते हैं। मीन्स अगर कंपनी को कोई लॉस हो गया या किसी का लोन वगैरह चुकाना है तो उसके लिए पार्टनर्स जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकते हैं। सो दे आर हैविंग लाइबिलिटीज अनलिमिटेड। Next is joint Hindu family business. Joint Hindu family business, not only there is Karta is there, the head of the family is known as a Karta, or that Karta is the owner or main person who is taking the decision. तो यहाँ पर कर्ता की responsibility unlimited होगी, and rest of all other members are having limited liability. बाकी के members की liability limited होगी, but Karta is responsible for all the risk. So liability of Karta is unlimited. In cooperative societies also the liability is limited, because as much as capital contributed by the members, they are liable for that only. वो ज़्यादा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को बेच के फर्म का लॉस कवर नहीं कर सकते। जितना पैसा उन्होंने लगाया उतना ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेस करनी पड़ेगी। Now company form of organization also, there are different members are there, and each member has limited liability because the company has their separate legal existence from their members. तो कंपनी की जो कैपिटल है वो जितने भी मेंबर्स ने कलेक्ट किए उनकी सिर्फ लाइबिलिटी उतनी ही कैपिटल तक होती है। वो अपने पर्सनल असेट्स को कंपनी के लिए सेल आउट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल और मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, द डिसीजन टेकन और द कंट्रोलिंग in different business form of organization, the controlling is done accordingly. Like in the sole proprietorship, there is a single person is there, so he will control all the matters of the business, he will take the decision. And in the partnership firms, as many members are there, so they are collectively taking the decision. And in joint into family business, कर्ता is taking the decision and rest other members has to accept the decision. यहाँ पर कर्ता मेन हेड होता है फैमिली का, तो वही डिसीजन लेगा और बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं सबको डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो मैनेजमेंट डिसाइड करती तो हम इलेक्ट करते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो मिलके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, ही विल टेक द डिसीजन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही कंट्रोल करता है। नो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कंपनी की जो आइडेंटिटी है इट इज सेपरेटली फ्रॉम हैज देयर ओन लीगल एग्जिस्टेंस, दे आर सेपरेट फ्रॉम द मेंबर। तो यहाँ पर जो ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है। मीन्स देयर सम इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर हु आर टेकिंग द डिसीजन ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट कमिटी इज देयर। तो वो जितने मेंबर्स हैं उनसे अलग होती है। मेंबर्स इज नॉट टू टेक एनी पार्ट इन द डिसीजन ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स एज वेल एज द कंट्रोलिंग ऑफ द कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, दैट कि बिजनेस आगे भी कंटिन्यू रहेगा या मेंबर्स के आने जाने से इफेक्ट होगा। डेफिनेटली सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर इज अ सिंगल पर्सन, तो सिंगल पर्सन होने की वजह से इसकी कंटिन्यूटी बहुत ही कम पीरियड की होती है। इफ the sole proprietor firm is died, sole proprietor person is died, or he may be having an accident, or he wants to leave the business, so the firm will be also, the sole proprietorship business also comes to an end, so the life is limited. यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है। एंड इन पार्टनरशिप बिजनेस इफेक्टेड बाय पार्टनर स्टेटस, इसमें अगर दो पार्टनर हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर एनी ऑफ द पार्टनर इज लीविंग द फर्म, सो द पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। पार्टनरशिप फर्म जो है एक भी मेंबर अगर उसमें से चला जाता है तो उसके ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाता है। और वापस अगर बाकी के पार्टनर्स फर्म को स्टार्ट करना चाहते हैं तो दे हैव टू मेक वन अनदर एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और फिर दोबारा से वो रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा से एग्रीमेंट साइन करके फिर से पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो पहली वाली पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। दैट कैन बी affected by the dissolution or by the retirement or by the any mishappening of the any of the member. Joint in the family business में भी stability होती है क्योंकि इसमें there are different members are there. So if one person is leaving or it maybe died, so it will not have any effect in this particular business. If the karta is died, so next elder member will become the karta and they will continue the business. Next is cooperative societies. Cooperative society, there are different members are there, so it does not have any effect in the coming and going of any of the member. The other members can continue the cooperative firm. So stability is there in the business and this will having a long period.
because it does not affects the means leaving of any of the particular member, leaving or the lunacy or the insolvency or the dissolution of means if any firm wants, any person wants to leave the business or he does not want to continue the business, so it does not have any effect on the cooperative societies. The existence of the cooperative society become continued. Next is the company. Company form of organization, there are many members are there in the company. It is a large scale business, so members may come and the members may go, but the company will be continued because there is having a separate legal existence separate from its members. Company is having their own common seal, and also members की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. कंपनी में जो ओनर है उनकी लाइबिलिटीज जो है वो उसमें मैनेजमेंट की अलग होती है. सो यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है कंपनी का वो बना रहता है. एक पर्टिकुलर मेंबर के या कुछ मेंबर्स के जाने से कुछ नहीं होता. द कंपनी विल बी कंटिन्यू because it is having a separate own legal entity, so it will be having stable existence. So students, now this is the comparative evaluation of all the different forms of organization. I think you can understand all the different forms of organization. Now I think it will be help you to become the sole proprietorship, or you want to become a partner of any of the company, any of the firm, or you want to join the family business, or you want to join the cooperative society or the joint Hindu family business, or a company, joint stock company. So I think you can take the proper decision, right decision, that which form of business organization is suitable for you. And I think you can understand the different forms of business organization.